Chandigarh Art Alive is a curious citizen and learner, just like all of us. So, our team approached architect Manmohan Khanna to unravel Chandigarh's design and how it still shapes our lives today. So, stay tuned and listen on. Me, for the last 14 years, I have been the chairman of Indian Institute of Architects, Chandigarh chapter. 2015 से लेके अभी till recent तक I have been the chairman of Indian Institute of Interior Designers. Then for past almost 10 years, I am the member of Council of Advisors to the Governor. Okay. Right? My job over there is to represent the profession and the people's their regrets to the government. Right. Today, I am one of those very few people who are fighting to retain the character of Chandigarh as it was designed. तो हम खूब लड़ रहे हैं इसके लिए. हालांकि बहुत सारी एजेंसीज हैं जो अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए वो इग्नोर करती हैं इस तरह के सजेशंस को. पर हम भी ठीक है, लड़े जा रहे हैं तो क्या कुछ तो बनेगा ही ना. But I can assure you, Chandigarh will never be destroyed as a green city, as a sustainable. We'll not let it go. So, when did your parents come to the city? My parents, they shifted to Chandigarh in 57 precisely. Okay. So, you came here as a 4-5-year-old child. 3 years. 3 years. तो मैं 53 born हूँ तो 56 में हम लोग आए. So my father used to work for High Court, and he was the only child of his parents. So my grandmother never wanted he should go and work outside, तो घर में ही रहे. जैसे हर माँ बोलती है तो my grandmother was no exception to it, कि बेटा मेरे साथ ही रहे. पर उनको क्या पता था कि और 2 साल के बाद हाई कोर्ट ही शिफ्ट हो जाएगा यहाँ से. सो 50 में बनना शुरू हुआ, 51 में, तो 53-54 में हाई कोर्ट भी शिफ्ट हो गया. सो दीज पीपल दे केम टू चंडीगढ़. सो दिस इज हाउ दे केम. तो मेरे को स्कूल में एडमिट करा दिया गया कि भाई तुम यहाँ पढ़ो. तो तब से लेके अब तक मैंने चंडीगढ़ को झाड़ियों से लेके यहाँ तक डेवलप होते देखा. So, how was Chandigarh at that time to grow up in? You said you and Chandigarh are contemporary. Contemporary, yes. So tell me that journey that started with Chandigarh and your birth. चंडीगढ़ जो है ना, इसमें ये जो मोतीलाल स्कूल है जहाँ बना हुआ, माई प्लेस ओवर हियर, दिस वाज विलेज नगला. Okay. तो नगला से इट वाज अ बस स्टॉप फॉर गोइंग टू पटियाला एंड उधर रोपड़ एंड अदर नंगल उधर प्लेसेस. सो दिस वाज अ प्लेस जहाँ पे बस रुकती थी. तो हम इस सड़क के ऊपर आते थे, दोनों तरफ इसके मैंगो ट्रीज, शेड. हमें पता भी नहीं लगता था कि कब पैदल आए और कब पैदल चले गए. एंड दैट टाइम चंडीगढ़ वाज द वेरी इन्फेंट स्टेजेस. तो जंगल ज़्यादा होते थे, पेड़ पौधे ज़्यादा होते थे, झाड़ियाँ होती थी जगह जगह, और कुछ ही लोग आते थे. एंड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट वाज आइदर वॉकिंग और साइकिल्स. वेरी फ्यू पीपल हैड लाइक बाइक्स, एंड बाइक्स तो थे ही नहीं उस समय. तो एक स्कूटर होता था पुराना सा लम्ब्रेटा, या तो किसी के पास वो होता था या कोई पुरानी कार होती थी. तो सर उस टाइम पर क्या बहुत इस बारे में बात होती थी कि चंडीगढ़ एक मॉडर्निस्ट एक्सपेरिमेंट है, we are a part of this experiment. Yes. What were the conversations that families had when they sat together? Everybody used to say that we are forced to live over here because the people came from different surrounding towns. Mostly people they came from Patiala. Some people came from Ludhiana. And very few people who came from Amritsar and Ambala and all regions. But why forced? Why forced to live here?
You see, Chandigarh was basically was designed and it was planned like a city for the government. Any place when you start, it is the role of the government. So this was called as the government city. तो गवर्नमेंट सिटी में क्या होता है कि आपके सारे एम्प्लॉयज़ होंगे, ज़्यादातर ऑफिसेज होंगे. नया नया हाई कोर्ट बना था उस समय और सेक्रेटेरिएट बन रहा था उस समय. असेंबली हॉल यहाँ पे बनना था. तो चंडीगढ़ की जो हिस्ट्री है ना वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. टू अंडरस्टैंड what were the feelings and how these my 2 generations back people were thinking कि ये चंडीगढ़ कभी बसेगा ही नहीं. This was the opinion of the residents of this. तो जो लोग चाहते थे कि चंडीगढ़ हैपनिंग हो जाए, अब हैपनिंग हो गया. अब तो ओवर हैपनिंग हो गई. अब तो सड़कें जो है ना वो भी चिल्ला के बोल रही हैं कि इतना भी हैपनिंग मत करो. Chandigarh was basically a designed city. It was never a planned city. Okay. Planning and designing, they are two different things. Okay. Planning happens when you totally plan the thing. जैसे आप घर प्लान करते हो, बनाते हो. So planning needs so much of data. तो चंडीगढ़ क्योंकि नया शहर बना था, हमारे पास कोई डेटा तो था नहीं कि कौन लोग होंगे, कहाँ से आएंगे, क्या क्लाइमेट कंडीशंस है, क्या टेम्परेचर ऊपर नीचे होते हैं, क्या इकोनॉमिक्स है. यहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं है तो फाइनेंशियली इसका स्टेटस क्या रहेगा, कैसा रहेगा, और जो लोग ऑक्यूपाई करेंगे वो कहाँ से आएंगे, उनका क्या फाइनेंशियल स्टेटस रहेगा. इस तरह की स्टडीज कंडक्ट करनी होती हैं. अच्छा. उनके बेसिस के ऊपर आप बनाते हो. तो जैसे डेमोग्राफिक स्टडीज अगर रखते हो वो नहीं थी इनके पास. आपके पास जो डेटा है सर्वे डेटा वो बहुत कम था. तो एनीवे जब ये बनाया गया तो इट वाज ए डिज़ाइन सिटी कि हम इसको बनाते हैं. कॉर्बूजियर ने जब बनाया तो उसके दिमाग में 2-3 चीज़ें आई व्हेन ही वाज गोइंग अराउंड और ऊपर से घूमा. तो उसके दिमाग में सबसे पहली बात ये आई कि इतनी अच्छी सराउंडिंग्स के अंदर I should design a city which is confined in say 3 side, और ये फाइनाइट सिटी ही बनाना चाहिए. इनफाइनाइट नहीं हो सकता. इसको एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन के लिए डिज़ाइन करना चाहिए. बट दिस शुड बी सस्टेनेबल. इट शुड गिव द एक्सपीरियंस ऑफ एज क्लोज टू एज नेचर. Okay. So that whosoever lives over here वो एक नेचर के साथ जुड़ा रहे. करेक्ट. तो उस कॉन्सेप्ट को लेके ये चंडीगढ़ को डिज़ाइन करके बनाया गया. तो दो तरफ इसको बंद कर दिया गया, तीसरी तरफ आपके हिल्स आ गई. अब ये सारा जो एरिया था वो ये सारा नॉर्थ टू साउथ स्लोपिंग था. सो कॉर्बूजियर ही इमीडिएटली डिसाइडेड कि सड़कों में पानी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है. सो ही टुक इट एज एन एडवांटेज दैट इन दिस सिटी सरफेस वाटर जो है ना, जो हर जगह वाटर लॉगिंग होती है, इसमें नहीं होएगी क्योंकि पानी ऊपर से आएगा. मेरी ग्रिड ऐसे बनी हुई है, पानी आएगा जूम नीचे और गए. He took advantage of this and that's the reason. अब आप सारी सड़कों को देखो ना, आप नॉर्थ टू साउथ की तरफ वो नीचे को जा रही है. आई थिंक हमारी लेजर वैली में भी जो पूरा जो बने हुए छोटे-छोटे, इट इज फॉर द ड्रेनेज ऑफ द सिटी, राइट. तो ये तो पहले चो ही थे. हाँ जी. इधर भी था, ऊपर से पहाड़ों से आता था. अच्छा, दूसरा क्या हुआ कि जब उसने ये देखा कि ऊपर से नेचुरल वाटर आता है, कितनी बारिश होती है, तो ये खड्डे थे जगह जगह, लेवल्स ऊपर नीचे. तो उन्होंने कहा कि देखो अगर हम ऐसे करेंगे तो बारिश का पानी आके कहीं तो इकट्ठा होएगा ना, फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. इसलिए आप एक काम करते हैं कि इसको ना एक ऊपर पहाड़ों के साथ साथ एक आर्टिफिशियल लेक डेवलप कर लेते हैं जिसके अंदर पानी की स्टोरेज हो जाएगी. पानी स्टोरेज का मतलब ये है कि जब पानी खड़ा रहेगा तो आपको कभी भी चंडीगढ़ में वाटर क्राइसिस नहीं होगी क्योंकि पानी जो है ना वो
सिंक करके नीचे जाता रहेगा। तो ऑटोमेटिकली उसकी जो वाटर, एक तरह से वाटर रेजरवायर नीचे वाला आपका ना साथ साथ ही रिप्लेनिश हो रहा है, पानी नीचे चला जाएगा। तो उसके लिए फिर क्या किया जाए, तो उन्होंने पानी इकट्ठा करना है तो एक बांध बनाया जाए, उसको डैम बनाओ। कार्बूजियर वांटेड के स्ट्रेट डैम बनाया जाए। अच्छा। हाँ? तो पीएल वर्मा सेज के जो पानी और डैम्स होते हैं वो कभी स्ट्रेट नहीं होते, क्योंकि पानी के प्रेशर अलग अलग तरह के होते हैं। तो उन्होंने कहा कि इट हैज टू बी लाइक दिस इन कर्वेचर। सो ही कन्विंस्ड कार्बूजियर नेवर वांटेड कर्व्स, ही वांटेड स्ट्रेट, क्योंकि ग्रिड भी स्ट्रेट थी, उसके दिमाग के अंदर स्ट्रेटनेस बसी हुई थी, स्ट्रेट नहीं करेंगे। तो ये बनाया गया। तो 3 किलोमीटर का वो जो रास्ता है लेक के ऊपर वो बनाया गया, और 14 मीटर्स हाइट उसको रेज किया गया नीचे के लेवल से। तो ये 14.5 मीटर की डेप्थ वाली लेक है, आर्टिफिशियल लेक है। तो इसके अंदर कंजर्वेशन ऑफ वाटर होती है। सो सेकंड थिंग, ही डिजाइंड दिस एज अ ह्यूमन एनालॉजी। Yes. दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। The modular man. मॉड्यूलर तो आपने बना दिया उसको, The modular man. हाँ, मॉड्यूलर मैन पे बनाया। His philosophy was, if we are getting connected with the nature, the best living is when you are living in consonance with the nature, जिसको nobody has ever denied। तो नेचर को आर्किटेक्चर में ब्लेंड करने के लिए उसने कहा कि who is the user? A man, and man was the creation of God. So the architect should create something on the ground which is close to the nature and which is serving the same kind of responsibility जैसे गॉड ने किया है। तो इसको एक ह्यूमन एनालॉजी के ऊपर डिजाइन किया गया है, लाइक यू आर सिटिंग इन The capital complex is the brain and the heart is palpitation, Like the 70. 17 आ गया। लंग्स है, आपको ब्रीथ करना है, तो वो आपके पार्ट्स आ गए सारे। आपके 2 आर्म्स आ गए, एक एजुकेशन और एक वर्क, तो एक इंडस्ट्रियल एरिया बन गया। राइट साइड में आपके यूनिवर्सिटीज और एजुकेशन हो गया, इंटेलेक्ट उधर चला गया। फिर आपके जो रोड्स हैं, सर्कुलेशन, दिस इज लाइक आर्टरीज कैरिंग ब्लड इनसाइड। और फीट जो आपका बेस है वो सारा साउथ के अंदर भेज दिया उसको। Okay. तो साउथ में दोज आर द पीपल, दोज आर द एक्टिविटीज जिसकी वजह से चंडीगढ़ अलाइव है। एक तो आप खाली बिल्डिंग बना के क्या करोगे उसका। तो चंडीगढ़ जो है ना, बेसिकली इट इज अ फीलिंग विच इज getting developed that this is a sustainable city, green city, energy efficient and based on the natural resources, और इसकी population is under control। फेज 1 में जो बना था वो ये सिटी को डिजाइन किया गया था फॉर 5 लाख पीपल। तो फर्स्ट फेज के अंदर उन्होंने बोला कि 1.5 लाख लोग आएंगे, 1.5 लाख। और सेक्टर भी 30 डिजाइन किए गए वहां से 1 से लेके 30 तक। दिस वाज फेज 1। फेज 2 जो था, उसके बाद रीडेंसिफिकेशन की जाएगी, 3.5 लाख जो है ना वो भी और बनाए जाएंगे। Today, whoever is living in Chandigarh, what can we do to sustain that better living? Not the politicians, not the administrators, not the municipal corporation, not the urban planners, but people who are living in the now. We have moved now. We have 10 years probably. And maybe we've come here just for 2 years. कितने भी टाइम स्पेंड किया, और we've decided to settle down in the Tri-City. It's not possible to settle down in Chandigarh anymore for most people. But if we decide to be associated to Chandigarh that closely, what can we do to sustain that better living concept that was laid down in concrete all those decades back? Today, what can we do? किस लिए आते हैं? क्योंकि चंडीगढ़ के जो बिल्डिंग्स हैं, चंडीगढ़ की बिल्डिंग्स और बाकी सिटीज की बिल्डिंग तो उतने की पैसों में बनती है जितनी यहाँ बनती है सबसे। The factor which brings you over here, which doesn't let you go out from here, is the
better civic sense what people have over there. It is the total experience of civic sense. Civic sense is an essential part of our identity as citizens of Chandigarh. As citizens of Chandigarh, which is very, very important, in our living. So what was that civic sense that you have grown up with and which you feel we must still continue to have? When I say Chandigarh was the city of government, educated class over there, तो जब सारे लोग यहाँ से चले गए तो ज़्यादातर लोग जो यहाँ पे आए they were all most of them they were educated class. उनको ठीक ढंग से रहना, ठीक सफाई रखना उनके लिए बड़ा it was a great matter that time. It was important to Very, very important. maintain a certain level of cleanliness. Cleanliness, which the credit goes to the government, the credit goes to the bylaws, which they made. Bylaws don't let you spread around all the muck over here on the roads. They will not let you move. कि जैसे आपकी बिल्डिंग बनी है तो उसको अपनी मर्जी से कोई आगे कर लिया, कोई पीछे कर लिया, किसी को ऊंचा कर लिया, किसी को नीचे, किसी को लाल कर दिया, किसी को पीला कर दिया. तो bylaws they control the illegal and an activity which affects the aesthetics and the function. Architect's job is to create environment. हमने चंडीगढ़ को एक इस तरह का एक्सपीरियंस क्रिएट किया है, इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश की है जो एक साइड से नेचर से जुड़ा हुआ हो, दूसरी साइड से इट शुड बी फंक्शनल. आपको इतना आरामदायक हो आपकी हर एक्टिविटी. मतलब कार है, अगर कार की पार्किंग आप दे देते हो तो आपको समझ सकते हो कि ऑर्गेनाइज्ड वे में कार आएगी तो यही पार्क होएगी. दूसरे क्या है, आप देखो जो अनऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज़ हैं, आप पता नहीं आपने कभी एक्सपीरियंस किया कि नहीं, छोटे शहरों के अंदर कोई अपने रिश्तेदार आता है उसको बस स्टॉप पे छोड़ने जाते हैं, तो आपने छोटे शहरों में देखा है जो कार ही लेकर जाते हैं, बस स्टैंड के अंदर घुस के बस के पास तक कार लेके जाते हैं, फिर वो थैला उठा के कहते हैं कार में रख दो. चंडीगढ़ के अंदर कोई, अभी तो बाकी जगह भी हो गया है, आप एक लिमिट के बाद आप कार नहीं ले जा सकते. यू हैव टू पार्क इट ओवर देयर, राइट. नाउ दीज आर सिस्टम्स. जो एनवायरनमेंट क्रिएशन है, इट ऑलवेज कम्स थ्रू अ सिस्टम. एंड द ग्रेटेस्ट लर्निंग फॉर क्रिएशन ऑफ एनी एनवायरनमेंट, एनी सिस्टम, वी हैव टू लर्न फ्रॉम नेचर. और उसको समझने के लिए आपका कॉन्शियस का जो लेवल है वो ऊंचा होना बहुत आवश्यक है. अगर आपका कॉन्शियस लेवल नीचे है तो आपके लिए अच्छी या बुरी के अंदर बहुत माइनर सा डिस्टेंस इतना सा रहता, वो कोई डिफर नहीं करता. Architecture is so closely connected to how we live our lives. It is only the science of for the better human living. It is an expression which creates an experience how best you want to live. This is what is architecture. Chandigarh जो था ना, basically it was designed as a module जिसको neighborhood unit बोलते हैं. तो चंडीगढ़ की ग्रिड बनी हुई है, इसमें जो लाइंस आ रही हैं ये सारी रोड्स हैं. ये रोड को नेटवर्क सिस्टम बोलते हैं. 7 levels of this. तो वीज बोलते हैं. वीज में जो वीज आई एंट्री, राइट. तो सर ये when in your journey, in your career of 50 years now, when did you start becoming such a strong proponent of Chandigarh's architecture and spirit? And now also you are doing so much, you're involved in so many things. So tell me how you started feeling that I need to do something here, and how you started getting involved in so many aspects of sustaining the spirit of Chandigarh.
बेसिकली क्या था कि आई गिव द क्रेडिट टू माई टीचर्स एंड हमारे जो प्रिंसिपल थे आदित्य प्रकाश जी, उनका इन्फ्लुएंस ये था कि कभी वो जो बेस्ट आर्किटेक्ट्स होते थे हमेशा अपने फंक्शन में उनको बुलाते थे, ज्यूरी में भी उनको बुलाते थे. सो आई वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड. एडी राजे थे एक आर्किटेक्ट अहमदाबाद में, वो मैं उनके साथ थोड़ा दिन काम भी किया. बीवी डोसी थे. एक कन्विंदे साहब थे दिल्ली में, वो भी हमारे इस कॉलेज में आया करते थे. उनका लड़का भी आर्किटेक्ट है अभी. तो मैं इन लोगों से बहुत इम्प्रेस्ड रहता था. सो एक स्टाइन थे, जोसेफ हेलन स्टाइन. उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए. उन्हें इंडिया इंटरनेशनल सेंटर बनाया, इंडिया हैबिटेट सेंटर भी उन्होंने ही बनाया. तो आई वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाई दीज पीपल. तो उनके जो काम करने का तरीका था उसके अंदर सच्चाई थी, उसके अंदर एक एक्सप्रेशन था, उसके अंदर एक परसिवियरेंस थी जिसने मेरे को खरीद लिया. तो मैं उनके जैसा ही बनने को राजी हो गया. तो खूब हार्ड वर्क किया, खूब मेहनत करी, दिन रात काम करते रहे उनके साथ. तो एक यहाँ पे हरदयाल सिंह जौहल होते थे, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर इन चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन हॉर्टिकल्चर के. वो हमें पढ़ाते थे लैंडस्केप, और उनके साथ हम इनको मिलने गए थे. तो रॉक गार्डन देखा, इट वाज अमेजिंग. हमें लगा कि क्या ये क्रिएटिव काम हो रहा है ना. अब ये सारी चीज़ें इंस्पायर्ड अस टू बिकम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, क्योंकि चंडीगढ़ वाज डिफरेंट. सो हम चाहते थे कि चंडीगढ़ और हम काम मिलके ऐसे करें कि बिल्कुल चंडीगढ़ जो है ना डिफरेंट हो. तो इट इज़ एन आइडेंटिटी फॉर अस, इट इज़ अ लव फेयर विद द चंडीगढ़, दिस सिटी. अब आपके सामने कोई इसको ख़राब करता है तो मैं तो फटाफट गाड़ी रोक के उतरता हूँ कि इसको उठा जेब में डाल, उधर जाके फेंक. ऐसे करता हूँ मैं, क्योंकि यू फील कंसर्न अबाउट इट. तो हम लोगों को भी ये करते हैं. मैं बच्चों को एजुकेशन के मामले में मैं जाता हूँ. आई एम ऑन द बोर्ड ऑफ फोर यूनिवर्सिटीज़ वेयर आई एम ऑन द बोर्ड ऑफ एजुकेशन विद देम. बेसिकली इंटेंशन ये है कि हम इन बच्चों को एजुकेट करें, इनको उस लेवल से ऊपर उठाएं ताकि ये भी कंसर्न फील करें ना. Right. I'm a part of the environment committee. Okay. What is the work that this committee is doing right now? कमेटी का बेसिकली काम क्या है, एडवाइस देना. जैसे हम लोग आपके साथ बातें कर रहे हैं इतनी कि क्या करते हैं, तो हम लोग उनको एडवाइस करते हैं कि ये काम कैसे कैसे किया जाए ताकि. So what is the focus right now? हम लोग का फोकस ये रहता है कि जो चंडीगढ़ के अंदर एनवायरनमेंट को क्लीन और नीट करने के लिए जो भी हम काम करते हैं, सजेशन देते हैं, तो वो एक्सेप्ट करते हैं, उसकी रिपोर्ट बनती है, Right. Okay. जाती है, तो उसको फोकस किया जाता है. सबसे पहला बड़ा काम था जो हमारा ये 38 सेक्टर में जो गार्बेज का पहाड़ बना हुआ है उसको सफाई करना. Okay. तो वो ऑलमोस्ट हो गया. और उसके लिए हमारी जो सरकार के मेंबर पार्लियामेंट है मनीष तिवारी, ही इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, इन्होंने इसको सैंक्शन करवा दिया वहाँ से. तो आपकी चंडीगढ़ में फेवरेट जगह है? मेरी फेवरेट जगह, फेवरेट इन व्हाट सेंस, जैसे where do you love going to spend time, or where you often go for a walk, or where you want to find your peace? लेक. और उसकी एक और खासियत मैं आपको बताता हूँ. जब आप अर्ली मॉर्निंग या इवनिंग में जाते हो तो उसके अंदर जितनी लैंप्स लगे हुए हैं ना लाइट के, वो इस तरह के हैं घूम के. उसके अंदर आपकी ना लाइट ट्यूब लगी हुई हैं विच थ्रो द लाइट ओनली ऑन द फ्लोर, आंख में लगती नहीं. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड डिटेलिंग. सारे चंडीगढ़ के अंदर आप अप्रिशिएट करोगे कि जितने हमारे रोड है, रोड के साथ एक बर्न बनाई गई है. ठीक है. उस बर्न के ऊपर लोग अलग अलग अपना करते हैं. कोई घास लगा लेता है, उसको रोड दिखती है. फिर जो आपकी उसके बाद एक बाउंड्री वॉल आती है आपके घर की जो कोने में सारी बिल्डिंग जो है. तो अब आप देखो कि उस बिल्डिंग के अंदर जहाँ पे दीवार लोगों ने ऐसे बनाई हुई है, या बर्म को भी घेर लिया उन्होंने, ऐसे करके ऐसे किया हुआ है. दिस बिकम्स मोस्ट एक्सीडेंट प्रोन एरियाज. जब आप इधर से आ रहे हो और आप इधर से आ रहे हो, आपने इधर से आया, उसने लेफ्ट टर्न ऐसे किया, और आप इधर से किसी को ओवरटेक करके आ रहे हो तो धाड़ के बीच में लगती है. Because you can't see what's ahead. इसको कहते हैं ब्लाइंड कॉर्नर्स. Right. चंडीगढ़ के अंदर when John Ray worked on this, he took a decision
कि he will not create the blind corners over here. तो उसको ओपन छोड़ने के लिए पहले आपका जो सबसे पहले ओपन स्पेस जो बनाते हैं उसको सेटबैक्स बोलते हैं। तो पहले सेटबैक को बनाया गया ताकि दूर से आपको इस रोड का ये वाला कोना और ये वाला कोना दिखे, ताकि आप स्पीड कंट्रोल कर लो, ब्रेक लगाओ, आगे जाओ। उसका वो पर्पस था कि इसको ऐसे गोल किया जाए। 5 फुट का एक रेडियस बनाया गया दैट एवरी कॉर्नर विल मेक होल लाइक दिस। फिर आपकी ये दोनों तरफ बर्न बनाई गई ताकि इधर से गाड़ी को इसको विजुअल कोई इंटरफेरेंस ना हो। So the Edict of Chandigarh, which was created in 1959 by Corbusier, it says, the city of Chandigarh is planned to human scale. It puts us in touch with the infinite cosmos and nature. It provides us with places and buildings for all human activities by which the citizens can live a full and harmonious life. Here the radiance of nature and heart are within our reach. It's a very emotional statement. What is its meaning? Architecture is so concrete. This is an emotional statement. What does it mean to a person living in Chandigarh today? देखो, मैं इसको आपके क्वेश्चंस को इस तरह से मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि ये जो बॉन्ड की बात कर रहे हैं ना, दिस इज अ बॉन्ड के कॉर्बूजियर ने एक एडिक्ट दिया, एक ह्यूमन स्केल को उसने डेवलप किया, इन्वेंट किया। सर एक स्टेप पीछे जाऊंगी, सॉरी एक स्टेप पीछे जाऊंगी। ये एडिक्ट का मतलब क्या है? एडिक्ट का मतलब होता है कि आपने एक स्टडी करके आपने उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपने उसको गाइडलाइन दे दिया कि यही होगा और इसके ऊपर ही काम करोगे तो बाकी सारा कॉन्सेप्ट मेंटेन रहेगा। सो बेसिकली एडिक्ट इज द स्ट्रॉन्गर वे ऑफ गाइडलाइन। गॉट इट। ठीक है। अब जैसे मैंने सबसे पहले आपको कहा कि ये सिटी ही ऐसा है जिसको एक ह्यूमन एक्टिविटी के लिए ह्यूमन बिहेवियर पैटर्न के ऊपर अलाइन करके बनाया गया। तो कॉर्बूजियर ने इसके ऊपर बड़ी ज़बरदस्त रिसर्च करी हुई है और उसने ये मान के चला है कि जो ह्यूमन एक्टिविटी है और जो बिहेवियर पैटर्न होता है इंसान का और जो उसकी आदतें होती हैं, उसकी बैकग्राउंड के अंदर कुछ खास बात होती है। वो खास बात क्या है कि आपको क्या चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है और क्यों अच्छी लगती है, कान को क्यों सुरीले, ये आपके जो म्यूज़िक है क्यों सुरीला लगता है। उसने बहुत इसके ऊपर रिसर्च करी। तो अल्टीमेटली ही फाउंड दैट एनीथिंग विच लुक्स वेरी नाइस, तो उसके अंदर 2, 3, 4 चीज़ें होती हैं। नंबर 1, proportion. Anything you see, whether it's a human being or whether it's a musical scale or it is the tone of colors or it is a texture, उसकी एक from one surface to another or one floor to one wall or one note in music to another note or for visual thing from one opening to another opening, solid space versus openings. तो ये जो सारी चीज़ें हैं उसने एक स्टडी किया कि इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ जो है ना, जो अच्छा लगने वाली जो चीज़ है, दैट इज प्रोपोर्शन। उस प्रोपोर्शन को उसने एक ह्यूमन बॉडी के साथ रिलेट किया। और रिलेट करने के बाद ही फाउंड आउट कि इफ अ मैन इज स्टैंडिंग लाइक दिस, ठीक है, तो उस समय उसकी जो हाइट है, उसका हाथ जो ऊपर जा रहा है, उसके जो लिम्स आ रहे हैं, उसकी हाइट आ रही है, नेवल से नीचे उसकी टांगे आ रही हैं, क्या आ रहा है, तो इसको उसने बड़ी ग्रेटली स्टडी किया। स्टडी करने के बाद ही invented a scale. The golden ratio. So he found that everything is in that golden ratio. If it is not in golden ratio,
तो आपकी जितना मर्जी आंखें और दिमाग सेंसिटिव हो, आपको लगता रहेगा कि यार ये यहाँ ठीक नहीं है, इसको यहाँ करो। Okay. तो वो करने के बाद उसने ये ह्यूमन स्केल डेवलप किया। Okay. Now scale, maybe you also know it, I also know it, right from the days of Archimedes. Archimedes ने म्यूजिक की स्केल डिवाइस की थी। Right. उसके पास जब वो काम कर रहा था तो उसने देखा कि वो जो लोहार काम कर रहा था, उसके जो दो डिश थे वो अलग अलग नीचे गिरे, फिर उसकी आवाज़ आई, फिर दूसरे की आवाज़ आई, तो उसको लगा तो यार म्यूजिक की टोन, और उसने फिर उसको स्टडी किया। तो उनकी रेशो जब डेवलप की, इट वाज 1:1.616। तो वो स्टडी जो है ना, रिवील की आर्किटेक्चर के अंदर कार्बूजियर ने। Do you think the young architects think differently now about how cities are planned? Yeah. How is their thinking different? यंग जनरेशन जो है ना, मैं अभी इसका नवी जो एक नोमेनक्लेचर आया है, जिसको बोलते हैं जेन ज़ी। अब इसका इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा हो चुका है कि इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जब हम पढ़ते थे तो मास्टर आर्किटेक्ट्स गिने जाते थे 4, जिनमें एक होते थे मीज वेंडर रो। तो उनकी जो फिलॉसफी ऑफ डिज़ाइन थी, वो अपना पूरा जितना आर्किटेक्चर उन्होंने किया, उसका एक थीम होता था, उसकी फिलॉसफी होती थी लेस इज मोर। दैट इज मिनिमलिज्म। जो आप कम से कम चीज़ करो वो लेस इज मोर। तो हम लोगों को जब पढ़ाया जाता था तो हम लेस इज मोर बोलते थे। वॉल्टर ग्रोपियस था जिसने एक स्कूल बनाया, थॉट बनाया। तो उसका जो प्रिंसिपल था, उसकी फिलॉसफी रही है आर्किटेक्चर में, फॉर्म फॉलोज फंक्शन। राइट। कि सबसे पहले अगर आपकी चीज़ फंक्शनल नहीं है, आप कपड़े भी पहनते हो, अगर वो आपको तकलीफ दे रहे हैं, गर्मी के मौसम में आप सिल्क पहन के बाहर चल पड़ते हो, तो आपको फंक्शन तो आपका डिस्ट्रॉय हो गया ना। तो उसकी एस्थेटिक्स और उसकी फॉर्म जो है ना, वो बाद में आनी चाहिए, पहले उसकी यूटिलिटी। अगर यूटिलिटी है तो दैट इज वर्थ, अदरवाइज इट्स नॉट वर्थ एनीथिंग। तो लेस इज मोर वन, फॉर्म फॉलोज फंक्शन सेकंड। थर्ड वन वाज एफएल राइट। ओके। जो फ्रैंक लॉयड राइट था, वो एक ऐसा आर्किटेक्ट था जो सारी जिंदगी उसने वेट करी कि मेरे को एक यूनिक बिल्डिंग बनाने का मौका मिले, कोई उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। एट द एज ऑफ मोर देन आई थिंक 58-57 years of life, he got the one project which is known as the Falling Water House. Right. वो एक उसको क्लाइंट मिली थी जिसने उसे कहा कि मेरी पहाड़ी है, ये मेरे जगह है, और इसके ऊपर तू जो ठीक समझता बना के दे, आई एक्सेप्ट इट। एंड ही क्रिएटेड फॉलिंग वाटर हाउस ओवर देयर, जिसके बीच में से पानी निकल रहा है। आपने देखी है फोटोग्राफ्स? हाँ जी। सो उसकी फिलॉसफी थी ब्लेंडिंग विद नेचर। तो इन कॉन्सोनेंस विद नेचर ही यूज्ड टू डिजाइन ऑल लैंडस्केप बिल्डिंग्स विद लैंडस्केप। फोर्थ वाज द कॉर्बूजियर। ओके। जिसकी फिलॉसफी थी सारी कि he was designing on sustainability and modern materials. He believed in the personality of a building is revealed by the kind of materials which we are using. So he says the purest materials, when we put in their original form, they have a much soothing impact on your emotions, eyes, than the other ones. Okay. Why he chose bricks? Because India is a hot country, and this place, Chandigarh, it was hot in summers, cold in winter. So he found that mud is the best material. If we use it in the form of bricks, तो ये सर्दियों में गर्म रखेगा, गर्मियों में ठंडा रखेगा। तो उसने एक मटेरियल को डिराइव किया, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं था। तो उसने कहा कि ये जो भी 50 किलोमीटर के अंदर की विसिनिटी में जो भी मटेरियल बनता है, अगर उसको यूज़ किया जाए तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बिल्कुल नील के बराबर हो जाती है।
लोकल लेबर लगाई जाए तो वो कॉस्ट रहे. सो दीज वर मेथड्स विच कुड अटेन सस्टेनेबिलिटी विद द मिनिमल अमाउंट ऑफ मनी. एंड इसके ऊपर सबसे बड़ी जो कंट्रीब्यूशन है, जो आपने डिजाइन देखते हो, ब्रिक्स विदाउट प्लास्टर, ब्रिक्स विदाउट दिस, तो उसका फॉर्म ये था कि ब्रिक्स जब बन के नेचुरल फॉर्म में आती है तो दैट इज़ द नेचुरल ब्यूटी. उसको लिपस्टिक लगा के और उसके फेशियल करने के बाद जो बनता है, वो कहता है कि उसका इतना इम्पैक्ट कभी नहीं हो सकता जितना इसके ओरिजिनलिटी मटेरियल्स के अंदर है. द फोकस, व्हाट आई मीन टू से इज, द फोकस इज नॉट ऑन द रियलिटी व्हाट आर्किटेक्चर इज. द रियलिटी with the diversity of economics conditional affairs these days, the invent of new technologies coming over here, और जो पैसे की होड़ लग चुकी है, इसके पीछे सबसे बड़ा जो रीजन है हमारी जनरेशन को खराब करने वाला, वो है greed. So I think what you are saying is that we need to be true to the art of architecture. Yes. तो जब तक आप ग्रास रूट लेवल पे आके अपने प्रोफेशन को नहीं समझोगे, ह्यूमन नीड को नहीं समझोगे, लेवल ऑफ सस्टेनेबिलिटी को नहीं समझोगे, नेचर की कदर नहीं करोगे, तो जितना आप नेचर से दूर भागोगे, उल्टी डायरेक्शन में जब आप चलोगे, तो नेचर विल डिस्ट्रॉय यू इन वन फॉर्म और द अदर. और वही कुछ हो रहा है. आप सिर्फ पैसे के पीछे भागोगे, क्या है, आपको बिना कंडीशन देखे आप कहते हो कि दुबई में गए तो वहाँ पे आपने सारी जितनी भी ग्लास वाली फिसार्ड्स हैं वो सारी देख ली और आके यहाँ बना दिए. आप मलेशिया में गए, आपने वहाँ देख लिया. दूसरा कनाडा में गया, वो क्लाइमेट का कोई इम्पैक्ट इनको बच्चों पे है ही नहीं. So फिर अगर इन बच्चों को आपको ये बताना हो कि स्पिरिट ऑफ चंडीगढ़ क्या है, then how would you explain that? What is the spirit of Chandigarh? The spirit of Chandigarh lies in creating a soul into a mannequin. Everybody in this city, he should be consciously aware that city belongs to me. So we have to, first thing is create a sense of belongingness to the people over here, that this is my city, I have to keep it clean. जैसे अपना घर साफ रखते हैं तो हम मोहल्ले को और शहर को साफ रखना हमारी ड्यूटी है. And this is a part of the civic sense, which we are trying to create. और बहुत सारे लोगों में आ भी रही है. Got it. I think what you're saying is that city is created by us. And that we are the spirit of the city. So however we behave, the city becomes. City will become like that.